Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331 4444. 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर और बात करते हैं बीएसई और एनएसई की। लेकिन दोस्तों, आज तो रविवार है और जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। आपके पास म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल हो, कहां आपको इन्वेस्ट करना है, कब तक इन्वेस्ट करना है, क्या होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल, क्या होती है एसआईपी, कुछ भी सवाल हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित, जरूर हमसे पूछें। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ आप इन्हें डायल करें, पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं म्यूचुअल फंड की एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्रा में। थैंक यू। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Over to Lalima. Thank you very much, Harsh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, India has become world's third largest country in terms of metro network, says Prime Minister Narendra Modi while inaugurating several development projects in Delhi. Government says draft digital personal data protection rules aim to create a robust framework for protecting digital users, and domestic markets to focus on corporate quarterly results, FOMC meeting minutes for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास रखा। कहा, भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया। कहा, इसके नियम डिजिटल उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और घरेलू शेयर बाजारों की नजर अगले सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों और एफओएमसी की बैठक के मिनट्स पर। Well, Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects worth over 12,200 crore rupees in Delhi. The key focus of projects is to enhance regional connectivity and ensure ease of travel. Speaking on the occasion, Mr. Modi highlighted that India's metro network has now reached 1,000 kilometers and lauded it as a remarkable achievement. Mr. Modi noted that in 2014, when the country gave his government the opportunity, India was not even in the top 10 globally in terms of metro connectivity. And however, over the past 10 years, India has become the third largest country in the world in terms of metro network. He emphasized that during the current tenure of their government, India will have the second largest metro network in the world. The Prime Minister also said that over the past decade, the government's primary focus has been on infrastructure development. He noted that 10 years ago, the budget for infrastructure was around 2 lakh crore rupees, which has now increased to over 11 lakh crore rupees.
He added that emphasis has been on modern connectivity, particularly within cities and connecting one city to another. Mr. Modi said that modern infrastructure is helping to ensure a dignified and quality life for everyone, including the poor and the middle class. Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal, Lieutenant Governor of Delhi Vinay Kumar Saxena, Chief Minister of Delhi Atishi were present among other dignitaries at the event. सहारनपुर से विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में। क्या सवाल है? हाँ, नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा टीम को और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार। सर, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेब्ट, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई ब्लू चिप, ये सब डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है सर। अभी मेरा इसमें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में 2000 का सिप चल रहा है और बाकी चारों में 1000 का चल रहा है। अच्छा, मुझे टॉप अप करना है, जो टोटल सिप अमाउंट है वो 12000 करना है और अभी मेरा जो है वो 6000 है। तो आप मुझे गाइड करिए कि किस प्लान में मुझे टॉप अप करना चाहिए या मुझे पोर्टफोलियो में कोई और प्लान म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। जी विवेक जी, आपने काफी बेहतरीन फंड्स को पिक करा हुआ है। काफी अच्छे फंड हाउसेस से डिफरेंट उनकी इक्विटी मैनेजमेंट का आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल रहा होगा। सारे फंड्स अभी के टाइम पर ठीक ठाक कर रहे हैं, अपनी कैटेगरीज में काफी अच्छी रैंक पर भी हैं, नियर टर्म में भी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में। जो आप कह रहे हैं कि आप बढ़ाना चाहेंगे अपना एसआईपी अमाउंट, ये भी काबिले तारीफ है कि आप समझते हैं कि जैसे हम हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे ही हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी सेविंग्स भी बढ़ाते रहें। तो मैं बोलूंगी क्योंकि सारे ही फंड्स एकदम ठीक ठाक करने वाले हैं, आप किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं अपना ये 12,000। अगर आप सब में ही इंक्रीज करना चाहे सब में कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि करंटली जो आपने सेट ऑफ फंड्स बताए हैं दे आर प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड। जैसे आपने बताया मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है। सिर्फ एक आईसीआईसीआई का फंड आपने बताया कि वो अग्रेसिव हाइब्रिड है जो आपको कुछ 30% डेट दे देता होगा। तो आप अपने नीड्स के हिसाब से एक बार ये एनालिसिस करिएगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो में आपको डेट की परसेंटेज अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आई वुड से आप अग्रेसिव हाइब्रिड में फिर थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपकी डेट परसेंटेज ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए बढ़ेगी। और जो आपके बाकी सब फंड्स हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड हैं, चाहे वो कॉन्ट्रा वाला फंड हो, एसबीआई का या मल्टी कैप हो, सब लार्ज मिड स्मॉल हर टाइप की कंपनी में लगाते हैं। तो बस ये इक्विटी डेट की एलोकेशन को देखकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो ये स्नेहा टॉप अप करने की बात कर रहे थे, तो इन्हीं अपने जो पोर्टफोलियो है इनका, इन्हीं में से फंड में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या आप सलाह देंगे कि कोई अलग फंड भी इसमें ऐड करें? जब तक ये फंड आपके गोल को मीट कर रहे होते हैं तो फिर न्यू फंड ऐड करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो क्योंकि ये फंड ये काफी एक अच्छा पोर्टफोलियो है, काफी सोच समझ के बनाया गया लगता है। बस आप लंबे टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहिएगा। बीच में कुछ अंडर परफॉर्मेंस के फेजेस आएंगे, तब भी आई वुड से नए फंड में ना जाकर आप इसी लॉट में से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे फंड को बढ़ा लेना भी आपको कॉम्प्लिकेट करता है। बिल्कुल। तो 3 से 5 के बीच अगर हो तो एक आइडियल मान सकते हैं। आइडियल वो इस तरीके से माना जाता है कि आप ना फिर वरी करते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। जब 10 हो जाते हैं, कुछ अच्छा कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, आप उतना ट्रैक अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब आपका थोड़ा लिमिटेड सेट होता है, यू थिंक अबाउट इट, यू एक्ट अबाउट इट, बिल्कुल, तो कॉम्प्लिकेशन कम रहता है। अगले कॉलर जी यस हरीश। यस, हरीश इज जॉइंड अस फ्रॉम हरियाणा। ये हरीश जी, आपको आवाज आ रही है? हरीश जी, आप यस सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। राम सर जी, कैसे हो सर जी? हरीश, अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए, बहुत इको हो रहा है, प्लीज। आप हाँ, रेडियो सेट बंद कर दे, आप फोन से ही सुने आप हमें। यस सर। जी हरीश जी, आप पूछे सवाल। सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 7 साल पहले अपने भारतीय डाकखाने में अपनी पीएलआई कराई थी 2, ठीक है। और सर मैं एक गांव से निकल के और दिल्ली राजधानी कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया मैंने।
2007 में। और फिर सर मैंने हिंदी ऑनर से बीए किया और उसके बाद बीए करने के बाद मैंने एमए किया और फिर एमए जैसे फर्स्ट ईयर था उसी टाइम मेरी दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई। जी सवाल पूछिए जी। दिल्ली पुलिस में एक एज ए हेड कांस्टेबल। जी सवाल पूछिए हरीश जी, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने अभी 2 साल पहले एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो जब इन्वेस्ट किया मैंने तो उस समय जो भी वो उन टर्म एंड कंडीशन बताई थी वो मेरे को ठीक नहीं लगी और मेरे घर पे भी एक फॉर्म आया, तो मेरा क्या समाधान इसका? नहीं, मैं बता रहा हूं। हरीश जी आप ध्यान से सुनिए। दरअसल आप थोड़ा सा पहले होमवर्क कर लें। आप अपने फंड का नाम लिख लें कि कौन सा फंड है और कौन सा फॉर्म आया था, आपने ये पैसे कब जमा किए थे और आपको उसमें क्या समस्या हो रही है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उस सवाल का फिर उस तरीके से जवाब दे पाएंगे। इतनी सारी चीजें पहले आप कहीं नोट कर लें और अगले सप्ताह आप हमसे फिर से जुड़ें तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट कॉलर इज केशव फ्रॉम दिल्ली। केशव आपका क्या सवाल है? जी सवाल पूछे जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछे केशव जी। जी मैडम, हमारे बेटे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अभी यंग हैं तो इस मुताबिक उनको कितने मीडियम, आप बोलते हैं ना मीडियम में करें या लॉन्ग में करें, तो ये मीडियम टाइमिंग कितनी होती है और लॉन्ग तो लॉन्ग होती है। और ये फंड सिस्टम क्या है? फंड अलग अलग तरीके की कंपनियों के नाम होते हैं क्या? इनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है तो मिनिमम कितना पैसा जमा करना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है और क्या क्या सिस्टम? जी हम समझ गए केशव जी। उनकी अभी जॉब लग गई है और अर्निंग मेंबर है वो। कोई नहीं, हम स्नेहा मान लेते हैं कि इनकी बिटिया की जॉब लगी है और वो इनिशियल करना चाहती हैं। क्या सुझाव होगा आपका? बिल्कुल। तो जो केशव जी ने बोला कि कितना मिनिमम इन्वेस्ट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे ज्यादा अच्छी बात ये रहती है कि मिनिमम एज सच कुछ मतलब आज के टाइम पर ऐसे फंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहां आप 10 रुपए की एसआईपी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वुड से ये वाला मिनिमम केशव जी की बेटी को इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो काम करती हैं, उनको एक अर्निंग मिलती है, हो सकता है उनके कुछ खुद के कुछ खर्चे हों, उसके बाद जो सरप्लस बच रहा है वो उसको कम्प्लीटली भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वाली स्टेज इंपॉर्टेंट होती है जहां पे यू सेट द बॉल रोलिंग फॉर इन्वेस्टिंग। सो आप जितना वो अमाउंट बच रहा है 4,000 5,000 आप उससे बिगिन करिए इन्वेस्ट करना। और फंड्स की जहां तक बात है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रहेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इक्विटी मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको थोड़ा समझ लें पहले। इसलिए ऑल इक्विटी फंड्स में ना जाकर हम हाइब्रिड इक्विटी फंड्स देख सकते हैं। जहां तक टर्म की बात है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ये कितना होता है, ये एक्चुअली एक जनरली माना जाता है कि लॉन्ग टर्म 5 या उससे ज्यादा का साल माना जाता है। और क्योंकि अभी बिगिन ही कर रहे हैं तो हमें उसी सोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। डिफरेंट फंड हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे केशव जी कह रहे थे, सबके अलग टाइप के फंड्स होते हैं। तो मैं आपको 2-3 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स बता सकती हूँ, जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड है, कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, डीएसपी का इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं। ये फंड्स क्या करते हैं कि आपका 60 से 70% पैसा इक्विटी में रखते हैं और कुछ डेट में रखते हैं। तो जब मार्केट ज्यादा गिर जाती है, ये थोड़ा सा कम गिरते हैं उससे, क्योंकि इसमें डेट की स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये हेल्प करते हैं मार्केट को थोड़ा समझने में, वो उतार चढ़ाव से घबराने में नहीं। और मान लीजिए 3-4 साल बाद जब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको समझ आ जाता है कि ये उतार चढ़ाव मार्केट का एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल है, उसके बाद आप डाइवर्सिफाइड फंड्स जिन्हें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स कहते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। राइट, वी हैव नाउ संजय एंड ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम मुंबई। जी संजय जी सवाल पूछें। मैडम, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जो पोर्टफोलियो दिखाता है उसमें पोर्टफोलियो में जायंट कंपनीज, लार्ज, मिड, स्मॉल और टाइनी दिखाता है कि कितना परसेंटेज है किसी फंड का। तो क्या टाइनी है, क्या माइक्रो कैप होता है? जी संजय जी, जो वैल्यू रिसर्च की मार्केट कैप क्लासिफिकेशन होती है वो सेबी से काफी अलग होती है और वहां पे जितना
50% जो टॉप में आते हैं अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो जाइंट बन जाते हैं, एंड जैसे आपने टाइनी बोला वो बॉटम 1% ऑफ द मार्केट हो जाता है, और क्योंकि वो बॉटम 1% हो जाता है तो आप उनको मान सकते हैं कि वो सबसे छोटा ऑफ द लॉट है जो कंपनीज का एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप बिल्कुल उन्हें माइक्रो कैप समझ सकते हैं. All right, we are now Anil calling us from Vadodara. जी अनिल जी, सवाल पूछे. हेलो, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 7-8 म्यूचुअल फंड है और इसमें से कई सारे फंड, 2-3 फंड है खराब प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसे कि मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है और एबीसीएल का फ्लेक्सी कैप. तो मेरे 7-8 फंड में से मैं सिर्फ 4 फंड करना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे इनकम 3.5 लाख एनुअली है. अगर मैं 4-5 लाख उठा के कोई एक फंड में डाल दूं तो क्या मैं लगेगा? वो कैसे रहेगी? आपके फोन की कनेक्टिविटी दोबारा आप एक बार कोशिश करेंगे. स्नेहा, आपको इनका सवाल क्लियर हुआ? जी, जितना मुझे समझ आ पाया ये कहना चाह रहे हैं इनके पास 7-8 फंड है एंड कुछ फंड्स हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. तो उन्होंने एक फंड मेंशन करा मिराई एसेट लार्ज एंड मिड. सिर्फ उसके बारे में मैं एक चीज उनके दिमाग में डालना चाहूंगी कि आप सही कह रहे हैं, ये फंड कुछ थोड़े टाइम से लगभग 1-1.5 साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बट इस पर्टिकुलर फंड की मैनेजमेंट पोर्टफोलियो क्वालिटी में अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक नहीं आया है कि आप एकदम से पैसे इसमें से विड्रॉ कर लें. आई वुड से कि अभी आप, क्योंकि आप इसका अंडर परफॉर्मेंस वाला फेज देख चुके हैं, तो थोड़े से और समय में बने रहिएगा, क्योंकि ये काफी बेहतरीन फंड है जिसने पिछले टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे हैं फॉर इन्वेस्टर्स. थोड़ा सा टाइम आप और बने रहे तो शायद आगे फायदेमंद रहेगा. प्रीतम दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ. प्रीतम जी, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत. सवाल पूछ लें. जी नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा टीम को. जी नमस्कार सर. मेरे थोड़े से 2-3 क्वेश्चन हैं, वो आप क्लियर करें तो मेहरबानी आपकी. एक तो ये एसआईपी जो लगातार अगर ना हो सके किसी वजह से रुक जाए किसी वजह से, उसके क्या लॉसेस हैं. और दूसरा है सर, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, उसके बाद में देश की पोजीशन अच्छी है इकोनॉमी की, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमें बाहर से भी मंगानी पड़ती है, तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती होगी, रुपया ज्यादा जाता होगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी, ये वैसे तो कार्यक्रम सिर्फ म्यूचुअल फंड से संबंधित है, तो आई थिंक वी कैन लिमिट द क्वेश्चंस ओनली टू म्यूचुअल फंड्स. सवाल ये है कि अगर एसआईपी है और बीच में बंद हो जा रहा है किसी वजह से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, तो प्रभाव एक्चुअली इस तरीके से पड़ता है दैट मार्केट अगर उस टाइम पर ऊपर जा रही है, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है क्योंकि आप उस समय में इन्वेस्टेड नहीं है. बट एसआईपी का माध्यम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे उतार चढ़ाव में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट होता है, परचेज का प्राइस होता है, वो एवरेज आउट हो जाता है. तो जब आप कभी नहीं कर पाते हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि वो लंबे समय के लिए बंद ना रहे. आपको पता रहे, मान लीजिए उस टाइम पे वो बैलेंस नहीं है जो उस अकाउंट में चाहिए फॉर डूइंग दैट एसआईपी, तो आप उसमें वापस वो बैलेंस डालिए ताकि आपकी एसआईपी कंटिन्यू रह पाए. क्योंकि होता क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट पे रोक लग जाती है तो हम सोचते रह जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज होती है जो बीच में आ जाती है सेविंग्स के. इसीलिए वो डिसिप्लिन रखने के लिए एसआईपी को कंटिन्यू रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो लॉस बेसिकली यही होता है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप मार्केट का वो वाला फेज, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. बिल्कुल. और लालिबा, जहां तक इनका दूसरा सवाल था रुपी को लेकर, तो मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि दरअसल ये सवाल जो किसी भी देश की करेंसी होती है उसका डीवैल्यू होना या उसका मजबूत होकर बढ़ना, इससे अर्थव्यवस्था का सीधा कोई संबंध नहीं होता है. ये सवाल पर्सपेक्टिव में होता है कि किस पर्सपेक्टिव से और किस विषय से आप उसको जोड़कर जानना चाह रहे हैं. दुनिया की कई ऐसी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे जापान की इकोनॉमी है, उनकी जो मुद्रा है वो हमसे भी कमजोर है, रुपये से भी कमजोर है. तो इसका सीधा संबंध ऐसे नहीं होता है कि अगर रुपया गिर रहा है या कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई. इनफैक्ट हर्ष, आई वुड से दैट वीक रुपी इज गुड फॉर एक्सपोर्ट्स. यस, क्योंकि वो ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं जो एक्सपोर्टर्स होते हैं. नेक्स्ट कॉलर कौन है? निखिल, वी हैव के शुक्ला हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम महाराष्ट्र. जी शुक्ला जी, सवाल पूछें. जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू.
नमस्कार। डॉलर का इफेक्ट इंडियन मार्केट में क्या पड़ता है और मनी मार्केट क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताइए जी। ये इनका भी स्नेहा वही सवाल है कि डॉलर का इफेक्ट भारत में क्या पड़ता है। अब ऐसे बताना तो ये सब्जेक्टिव सवाल है। जब आप ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसमें डॉलर पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मनी मार्केट क्या होता है ये आप बताएं। बिल्कुल। तो जैसे इंडिया में एक इक्विटी मार्केट है, ऐसे ही एक डेट मार्केट होती है। एंड डेट मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 1 साल से कम की अवधि के साथ रहते हैं, क्योंकि जो डेट अपने में एक टर्म होता है वो ये डिफाइन करता है एक बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए इतना पैसा डालेंगे, एक समय तक आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिसे हम ब्याज दर कहते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी के एंड में आपको आपका प्रिंसिपल और ये ब्याज दर पूरा मिल जाता है। तो वो जो मैच्योरिटी होती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं फॉर दैट डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट में ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी अवधि इस 1 साल से कम की रहती है। तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड डोमेन की बात करी जाए तो मनी मार्केट फंड्स भी होते हैं जो इन्हीं टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कभी इन्वेस्ट करना चाहें तो ये डिफरेंट फंड हाउसेस के मनी मार्केट फंड्स आप देख सकते हैं। निखिल अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। निखिल जी अपना सवाल पूछ लें प्लीज। हाँ जी, हाय टीम। तो मैम ने अभी एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि मेरा एसेट का जो लास्ट लिमिट है दैट्स फंड, तो मेरा भी इसमें एसआईपी चलता है, बट सिंस इट इज अंडर परफॉर्मिंग, तो क्या मुझे अपना एसआईपी रोक के कोई दूसरा एसआईपी करना चाहिए व्हाइल आई स्टे इन्वेस्टेड इन दैट फंड, या फिर आई शुड जस्ट कीप माई एसआईपी गोइंग फॉर दैट फंड? Right. Nikhil, so as you would have heard, I mentioned that I agree that the fund is going through a bout of underperformance, but every fund goes through that phase. I would say currently the kind of performance that we are seeing, it seems like there could be a reversal here because there is not really anything wrong with the portfolio quality. But if let's say the underperformance is too concerning for you, then I would definitely say you can maybe look to stop your SIP here and start it somewhere else, but make sure to invest in a diversified vehicle only. But again, coming to the point specifically regarding Mirai Asset Large and Mid, in my view, you may continue investing, and since you have already seen a down phase of the fund, so it is better to stick to it for some more time since you have already seen the painful period. All right, we are now joined by Nitin calling us from Faridabad. जी नितिन जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अरे मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड में हॉलमार्क का होता है, चांदी में भी हॉलमार्क का आता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आप बता रहे हैं कि हमारे अकाउंट से पेमेंट जाएगी, उसमें से ही पेमेंट आएगी, जो अकाउंट हमारा जो निजी अकाउंट होता है वही अकाउंट खोला जाता है कि इसके अदर कोई अकाउंट होता है आपका? एक तो नितिन जी और हम लिसनर्स को बता दें दैट दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बिल्कुल सीमित है म्यूचुअल फंड्स, एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड्स पर होता है। हफ्ते में एक बार हर इतवार को होता है 6:30 बजे मार्केट मंत्रा में। हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पर बात करते हैं। उसके संबंधित कोई भी आपके गिले शिकवे या कोई डाउट्स हों कुछ, तो उसके बाहर अगर आप थोड़ा सा ये डिसिप्लिन बनाकर रखें सवालों का तो बेहतर होगा। Isn't it, हर्ष? बिल्कुल। और इनका एक जो सवाल था कि सोने पर हॉलमार्क होता है, चांदी के बने जो आभूषण होते हैं उन पे भी हॉलमार्क होता है, लेकिन जैसा लालिमा ने कहा कि आज हम सीमित रखते हैं अपने आप को म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, नासिक चलना पड़ेगा। शशिकांत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि क्या सवाल है आपका आज का? जी नमस्कार सर। पहले तो सभी मार्केट मंत्रा के सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, विनम्र नमस्कार। और मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही मैं अक्सर मेरा ऑफिस से घर को ट्रेवलिंग के हिसाब से पूछता हूँ, मैं सीधे सवाल पे आता हूँ बेसिकली। सर म्यूचुअल फंड के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए इसमें। तो अभी मेरा ये इसमें थोड़ा क्वेरी था कि मैंने शुरुआत लगभग 10 से 12 साल पहले करी थी, और उसके बाद में करीब आज की डेट में पिछले 5 से 6 सालों से लगभग
15 से 18,000 रुपए जी पर मंथ म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो हम ये कहते हैं सर कि लॉन्ग टर्म के लिए बना होना चाहिए, तो अभी मेरे जैसे मतलब मैं बिल्कुल इनोसेंटली पहली बार मैं एक तो सवाल पूछ रहा हूँ इसमें, तो कितना टाइम को लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप? शशिकांत जी, अगर आप पिछले 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6-7 साल से SIP कर रहे हैं, तो अब तक आपने इसका जादू देख लिया होगा कि आपका जो मूलधन है वो बढ़कर कितना हो गया है, क्यों स्नेहा? बिल्कुल बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म कितने को कहेंगे? और मैं यहाँ एक ये बात मेंशन करना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा हर जी कि वो मैजिक जो होगा लॉन्ग टर्म का वो ऑलरेडी विटनेस कर रहे होंगे। फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। जब तक आपका गोल नहीं आ रहा और आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही तब तक आप सोचे ही मत कि आपको निकालना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड्स में हम इक्विटी जहां पे आ जाता है वहां बोल रहे होते हैं कि कम से कम 5-7 साल वो लगाए रखें, क्योंकि इक्विटी के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो लंबे समय में ही आप उसके बेनिफिट्स रीप कर पाते हैं। बिल्कुल, और जब तक आपको जरूरत नहीं हो तब तक आप उसमें धन लगाए रखें, क्योंकि वो कंपाउंडिंग का जो जादू होता है वो एक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। और कंपाउंडिंग से आपकी रकम न सिर्फ दुगनी तिगनी होती है, कई बार 10-10 गुनी तक भी बढ़ सकती है। And it's so nice to see your money grow. बिल्कुल। और हिजबुल हक के पास जाने से पहले लालिमा के पास एक खबर है। जी जी बिल्कुल। Government has said that the draft digital personal data protection rules aim to safeguard citizens' rights for protection of their personal data. These rules seek to operationalize the Digital Personal Data Protection Act 2023 DPDP Act in line with India's commitment to create a robust framework for protecting digital personal data. Designed to empower citizens in a rapidly growing digital economy, they seek to protect citizens' rights in accordance with the DPDP Act while achieving the right balance between regulation and innovation. The rules also address specific challenges like unauthorized commercial use of data, digital harms and personal data breaches, and the rules embrace a digital by design philosophy. हिजबुल हक हरियाणा से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? जी गुड इवनिंग जी, मार्केट मंत्री आप सबको। जी गुड इवनिंग, जल्दी से पूछ लें, समय कम है। जी मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मेरा म्यूचुअल फंड में चल रहा है, जैसे मेरे अकाउंट से 2,000 पर मंथ कट आउट हो रहा है, तो मुझे मैसेज शो कर रहा है 1,999 रुपीज जी 9 पैसे, बाकी का 10 पैसे मैंने 10 पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये अक्सर होता है, कई बार 98 पैसे भी आएंगे। ठीक है, ये कई लोगों के सवाल है जी स्नेहा। बिल्कुल। तो एक्चुअली 1 जुलाई 2020 से सेबी ने एक नया रूल लाया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट में एक स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जो कि एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट होता है, और इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको कट के ही बताते हैं कि आपके इतने इन्वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि बाकी का वो स्टैम्प ड्यूटी में चला गया। बट लंबे समय में आपकी इन्वेस्टमेंट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट आपका इन्वेस्ट ही हो रहा होता है। ज्यादा क्या मतलब, ये इतना मीगर अमाउंट है कि शायद आपको जो रिटर्न होगा उससे कहीं ज्यादा होगा। और ये तो वरी करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भरपाई कर देंगे काफी अच्छी तरह। बिल्कुल, वो 5 पैसे 10 पैसे कभी कभी 1 पैसे भी आप देखेंगे कि उसमें कम है। बहरहाल श्रोताओं, अब आज आपसे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, वक्त कम है, और कल से मार्केट एक बार फिर स्नेहा ओपन होगा, और कल बाजार किस चीज पर नजर रखेगा ये बताते हैं आपको। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 हफ्तों में जारी जो बढ़त है, अगले सप्ताह भी अभी जारी रहने की उम्मीद है। बाजार की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर होगी, साथ ही FOMC की बैठक के फैसलों पर भी बाजार की चाल निर्भर करेगी। इस सप्ताह बाजार में 0.8% की तेजी रही थी। सेंसेक्स सप्ताह भर के दौरान 524 अंक बढ़ा था, 79,223 पर रहा। निफ्टी में भी 191 अंक की बढ़त हुई थी, 24,000 के ऊपर पहुंच गया था। अगले सप्ताह TCS और एवेन्यू सुपर मार्ट्स के नतीजों पर बाजार की नजर टिकी रहेगी। आज के लिए इतना ही। और स्नेहा, आप आई, आपने म्यूचुअल फंड्स पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और तमाम श्रोताओं का भी शुक्रिया, आपने हमें सुना और अपने सवाल पूछे। और चलने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर अंग्रेजी में। जी जी। Well, friends, India has become world's 3rd largest country in terms of metro network, says Prime Minister Narendra Modi while inaugurating several development projects in Delhi. Government says draft digital personal data protection rules aim to create robust framework for protecting digital users.
And domestic markets to focus on corporate quarterly results. FOMC meeting minutes for Qs next week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. And let's remind you once again that all the other 6 days we talk about all other issues relating to markets, stocks, oil, rupee, what have you. But on Sunday, it's exclusively for mutual funds. So please stick to that question of discipline. Thank you very much. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Harsh Ranjan. Signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.